वेल चिल्ड्रन, पिछले लेसन में हमने एसआई सिस्टम के 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। As far as definition of plane angle is concerned, so plane angle is basically defined as the angle subtended by an arc length of a circle at the center of it. Consider this be a circle and consider AB is an arc length. So how much angle it subtends at the center of circle? Now check, AB is an arc length, R is the radius of the circle. How much angle theta it subtends at the center of circle? That angle is called as plane angle. Now we consider, suppose R is equal to S. Consider AB is numerically equal to S in length. So if arc length S is equal to radius of the circle, then plane angle becomes equal to 1. Why it becomes equal to 1? Because plane angle is equal to arc upon radius. This is the formula. If S is equal to R, then arc length and radius both are equal, both cancels out. So this becomes equal to plane angle is equal to arc length becomes equal to S, and R is also equal to S. So this both cancels out. So plane angle becomes equal to 1 radian. Therefore 1 radian is that plane angle which is subtended by an arc length at the center of circle whose length itself is equal to the radius of circle. So this is what the definition of 1 radian. Now let us find out what in case, because arc length AB is a part of circumference, so what can be the maximum possible value of this plane angle? So in case we want to find the maximum value of this plane angle, so it will be 2 pi r arc length, the complete length of circumference upon the radius of circle itself. Now r and r cancels out, so theta maximum plane angle is represented by symbol theta, so it is equal to 2 pi. Therefore maximum value of plane angle is numerically equal to the angle subtended by entire circumference of the circle at the center of it. Now let us find what is the definition of solid angle. Solid angle is what? Consider this be a sphere and this sphere is of radius say r. Consider a part of this surface and its value is say equal to delta S. So now we say let us join each part of this surface element to the center of this sphere, and then we see how much is this conical angle drafted. So this conical angle drafted is say d omega. So that's what a part we are taking here. ds delta S is what a surface part of the surface sphere, and r is what it is the radius. So how much is this 3-dimensional angle generated at the center of a sphere? That is taken as solid angle. Now that's what the statement taken. Consider the sphere of radius r has total surface area S, and delta S is a part of that surface element, and essentially I'm going to take it as a normal component. Then angle subtended by this surface element at the center of a sphere is called as the solid angle. Now it is given according to formula d omega is equal to normal component of surface element upon radius square. So what is this part? Normal component of surface element. It can be mathematically justified, पर पहले आज बहुत इनिशियल लेवल पे पढ़ाई करते हैं, तो उसके लिए हम एक शॉर्टकट ट्रिक सिखाते हैं। आप इस डेल्टा एस को स्फेयर के ऊपर प्रोजेक्ट करने की कोशिश करें। सपोज इट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? फुटबॉल पैच। तो इस पैच को आप फुटबॉल के ऊपर रखिए। अगर ये पैच पूरी तरीके से फुटबॉल के सरफेस पर कंप्लीटली प्रोजेक्टेबल हो गया, तो समझिए कि ये नॉर्मल कंपोनेंट था। और अगर नहीं हुआ, थोड़ा पोर्शन बाहर है, तो इट इज नॉट नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ सरफेस एलिमेंट. सो व्हेन वी डिफाइन दिस सॉलिड एंगल, we are making normal component of surface element into use. If it is not a normal component of surface element, so this definition is not valid for this one. तो
पहले इसी वजह से जब डिफिनेशन स्टार्ट की तो पहले से ही बोल दिया कि वी आर कंसिडरिंग अ स्फीयर ऑफ रेडियस r and it has total surface area say S. Delta S is a part of that surface element. Now which is a normal component of surface element? So now we are going for the definition. Solid angle is defined as normal component of surface element upon radius square. D omega is equal to delta S upon r square. Its SI unit is steradian. Now once more you check that it is delta S upon radius square is the term. Now first we will try to define what is 1 steradian. So with just common definition, if delta S is equal to r square, then numerator denominator will cancel out and we are left with 1 steradian. Now here we begin. If delta S is equal to r square, then d omega equal to 1 steradian. Therefore 1 steradian is that solid angle which is subtended by surface element whose area, this delta S, whose area is equal to the square of radius of a sphere. Now again you check, because surface element was a part of total surface area, what can be the maximum value of total surface area? So maximum value of surface element can be equal to the entire surface area of a sphere. If a sphere has radius r, then its total surface area value is equal to 4 pi r square. Then d omega is equal to normal component of surface element. This time it is equal to 4 pi r square, complete surface area of the sphere upon r square. Now r square cancels out. So maximum value of this solid angle is equal to 4 pi steradian. And here comes the definition. So maximum value of solid angle is numerically equal to the angle subtended by entire surface area of the sphere at the center of a sphere. If we just look on the complete table of SI system, we notice that there are 7 fundamental quantities, and these fundamental quantities have got certain fundamental units. It's a symbol, and then we have 2 supplementary fundamental quantities. Supplementary fundamental quantities को मैंने यहाँ formally define किया, न्यूमेरिकल वैल्यू डिफाइन की. तो जब कभी भी आपसे प्लेन एंगल पूछा जाए, सो डोंट स्टॉप जस्ट राइटिंग द फॉर्मूला प्लेन एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. प्लीज डू राइट व्हाट इज द डेफिनेशन of 1 radian and what is the maximum value of plane angle as well. Similarly, do write what is the definition of solid angle, write its formula, then define 1 steradian, and then define what is the maximum value, how it is completely how it can be calculated. Now let us come back to what are the advantages of having this new formal system, SI system. So first part is what? It is a metric system of unit. In metric system of unit, every new unit is multiplied by digit 10. जैसे अगर आप ग्राम को बेस क्वांटिटी मान के चले, तो इसको 10 से डिवाइड करिए डेका, उसको 10 से डिवाइड करिए हेक्टो, उसको 10 से डिवाइड करिए किलो. नाउ अगेन यू गो सेम वे. अगर ग्राम को हम 10 से डिवाइड करें डेसी, फिर डेसी को 10 से डिवाइड करें सेंटी, फिर सेंटी को 10 से डिवाइड करें देन मिली. सो इट इज व्हाट अ वेरी कॉमन. सी डिवाइडिंग बाय 10 इज अ सिंपल placing the decimal value from one position to another. So it's a quite simple system. So that is what it became its advantageous condition. क्योंकि अगर आप देखें इंच से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो वन फैक्टर कम्स इट हैज नथिंग टू डू कि अगर आप इंच से फुट में कन्वर्ट कर रहे होते तो वही कॉमन कन्वर्जन फैक्टर आता. सो दिस इज व्हाट अ मेट्रिक सिस्टम. सो इट इज अ रेशनल ऑल्सो, इट इज एब्सोल्यूट ऑल्सो, इट इज कोहेरेंट ऑल्सो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट? अगर आप बाकी ट्रिवियल सिस्टम को देखें तो जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए तमाम ट्रिवियल सिस्टम्स अप्लाइड है. कहीं फुट है, कहीं इंच है, कहीं मीटर है, कहीं सेंटीमीटर है, कहीं लट है. तो डिफरेंट ट्रिवियल सिस्टम्स आर यूज्ड विच आर नॉट कोहेरेंटली रिलेटेड टू वन अनदर. लाइक हियर यू सी दैट दे आर रिलेटेड बाय कन्वर्जन फैक्टर ऑफ 10. लेकिन और दूसरे सिस्टम में ये कन्वर्जन फैक्टर 10 से रिलेटेड नहीं है, वो ट्रिवियलिटी है और यहाँ एब्सोल्यूट है. 1 किलोग्राम सिर्फ 1 किलोग्राम के बराबर है, कोई दूसरी वैल्यू इसकी बराबरी नहीं कर सकती. चलिए अब हम कुछ ऐसे मेजरमेंट्स ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज को करते हैं जो प्लेन एंगल या
सॉलिड एंगल पर बेस करेंगे। आज हमारा पहला स्टेप होगा प्लेन एंगल के एनालिसिस को समझने के लिए। सो मेजरमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज में कंसीडर दिस इज व्हाट द मून एंड दिस इज व्हाट द अर्थ। O इज द पोजीशन ऑफ सपोज ऑब्जर्वेटरी। यहां से हमने क्या किया, मून की पहले डिस्टेंस लेजर लाइट टेक्निक से निकाली। कैसे निकालते हैं, आप अर्थ सरफेस से लेजर टॉर्च को ऑन करिए, यहां से लाइट मून तक जाएगी और वहां से वापस रिफ्लेक्ट होकर के आ जाती है। जब वो रिफ्लेक्ट होकर के आएगी तो जितने टाइम में आपने स्विच ऑन किया और फिर वापस रिफ्लेक्ट होकर के अर्थ पर वो वापस आई, यहाँ डिटेक्टर लगा है तो डिटेक्टर का वो टाइम लैप पता चल जाएगा। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला लगाइए और एस की वैल्यू पता चल जाती है। हमारे पास ये न्यूमेरिकल फाइल में है, अभी न्यूमेरिकल स्टार्ट नहीं किया है, तो कंसेप्ट के लिए जितने क्वेश्चंस जरूरी हैं वो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, फिर न्यूमेरिकल सीरीज ऐसे ही सिस्टमैटिकली स्टार्ट हो जाएगी। सो प्राइमरली यू रिमेंबर कि एस की वैल्यू को हम लेजर लाइट टेक्निक से डिसाइड कर सकते हैं। अर्थ सरफेस पर जहां कहीं अर्थ है, यहां एक ऑब्जर्वेटरी से हमने 2 एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप लगाए। अब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के इस एंगल और इसके बीच का हमने पहले डायमीटर मेजर करने के लिए सेक्सटेंट टाइप का हमने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप लिया। उसकी दोनों ट्यूब के बीच का जितना एंगल था वो थीटा एंगल भी हमने मेजर कर लिया। जब आपके सेटअप डायमेट्रिकली अपोजिट पोजीशन ऑफ मून को फिक्स कर रहे होते तब। सो नाइस, हमने क्या पता कर लिया, थीटा पता कर लिया और एस पता कर लिया, और अर्थ की जो ऑब्जर्वेटरी है वहां से जब हमने थीटा एंगल को मेजर किया तो ध्यान ये रखा कि किसी भी टाइप का डिले ना हो, यानी कि ऐसा नहीं पहले एक एंगल मेजर कर लेते हैं फिर घुमा के लाएंगे दोबारा एंगल मेजर करेंगे, तब तक अर्थ और मून के बीच में रिलेटिव मोशन हो जाएगा। तो आपकी दोनों ट्यूब एक साथ फिक्स्ड होनी चाहिए और आपने कंप्यूटराइज्ड स्नैपशॉट लेकर के एंगल थीटा को उसी टाइम पर विदाउट एनी टाइम डिले यू हैव मेजर्ड दिस। सो नाउ लेट अस कम फॉर इट्स फिगरेटिकल डिस्क्रिप्शन। S इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द मून, जिसको हमने लेजर लाइट टेक्निक से मेजर किया है। दूसरा, O इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन द अर्थ, ये ऑब्जर्वेटरी का सिलेक्टेड पॉइंट है। थीटा इज द एंगल मेजर्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेटरी O फॉर 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स A एंड B ऑफ द मून, यानी A और B पर हमने रैमस्टेन आईपीस का क्रॉस वायर फिट किया, और जहां पर वो जैसे फेस डिटेक्टर का ऐप होता है वैसे ही वो टेंजेंट डिटेक्टर का भी ऐप चलता है। जैसे ही वो ऐप में टेंजेंट डिटेक्ट हुए, स्नैपशॉट हो गया, उनके बीच का डिजिटल एंगल कैलकुलेट होकर के आ गया। अब जो प्लेन एंगल कैलकुलेट होकर के आया, से दैट इज थीटा। कैलकुलेट करने के बाद अब हम इसका डायमीटर कैलकुलेट करना चाहते हैं। सो अर्लियर यू हैव सीन इन दिस पिक्चर, कंसिडर दिस इज व्हाट अ बिग सर्किल, दिस इज व्हाट आर्क लेंथ AB, और ये आर्क लेंथ AB सेंटर पर जो एंगल बनाती है, दिस एंगल इज व्हाट थीटा, एंड दिस थीटा इज गिवन बाय प्लेन एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस फॉर्मूला। सेम सिचुएशन वी आर ट्राइंग टू अडॉप्ट हियर। कंसिडर दिस इज व्हाट अ बिग सर्किल and O is what? O is the center of that circle, ये बड़े वाले सर्किल का ये सेंटर हो गया। S is what? Radius. Now this becomes plane angle and the diameter of the moon is roughly becoming equal to what? Arc length for this circle. For this, AB is an arc length, S is the radius. So plane angle is equal to arc upon radius value we are applying. Plane angle is equal to arc upon radius. Now here you see that the arc length is equal to what? It is diameter of the moon. Plane angle is equal to diameter of the moon upon radius. Radius value is the distance between the earth and moon. Now what are we doing? यहाँ से हम ट्रांसपोज कर दे diameter of moon AB is equal to plane angle multiplied by distance between earth and the moon S. AB can be taken as S into theta। अगर हम किसी तरीके से S की वैल्यू लेजर लाइट टेक्निक से ये आ जाती है, प्लेन एंगल अगर मेजर हो जाए तो हम डायमीटर ऑफ द मून को रफली पता कर पाएंगे कम एरर के साथ, क्योंकि ये बहुत बड़ी डिस्टेंस नहीं है बिटवीन अर्थ एंड मून। अब थीटा की जो वैल्यू आती है, थीटा वैल्यू एज पर आर SI कन्वेंशन, इट हैज टू बी टेकन एसेंशियली इन रेडियन। सो प्लेन एंगल थीटा कैन बी मेजर्ड इन डिग्री, जो हमें मालूम है, मिनट जो हमें अभी नहीं मालूम, अभी डिस्कस करते हैं, या सेकेंड में। तो रेडियन, ये थीटा की वैल्यू को हम डिग्री, मिनट या सेकेंड में कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन
क्योंकि हमारा सारा कैलकुलेशन एसआई सिस्टम में होगा तो हमें प्लेन एंगल की सिर्फ रेडियन इक्विवेलेंट वैल्यू ही चाहिए। तो हम सबसे पहले एसआई सिस्टम में प्लेन एंगल जिसको हम डिग्री या मिनट या सेकंड में मेजर करते हैं उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें उसका कैलकुलेशन चार्ट देखिए। चार्ट देख लीजिए, आपकी एनसीईआरटी बुक में ये बहुत प्रिसाइज कैलकुलेशन नहीं है, कम से कम इतना एलोबरेटेड कैलकुलेशन तो नहीं है, न्यूमेरिकल्स उस पर बिल्कुल हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई। एक कंप्लीट सर्किल में 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई। अब यहां देखिए हर डिग्री में 360 डिग्री है, इसको 360 एक सर्किल के को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। जैसे यहां से आप डिवाइड करते हैं यहां तक आते आते 90 डिग्री का एंगल हो जाता है। तो 90 डिग्री को आपने इतने क्वाड्रेंट को, फर्स्ट क्वाड्रेंट को आपने 90 इक्वल पार्ट्स में डाला, एक हिस्सा 1 डिग्री। अब एक डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, अभी जो आया दैट इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 1 मिनट। 1 मिनट इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 डैश। ओके, फिर 1 डैश यानी 1 मिनट में 60 सेकेंड। यानी देखना हर डिग्री में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। ये देखना 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 360 रेडियन। तो अगर हमने डिग्री में कैलकुलेट किया होता, यहां पर अगर हमने थीटा की वैल्यू को डिग्री में कैलकुलेट किया होता तो थीटा की वैल्यू को डिग्री में कैलकुलेट करने पर रेडियन में हम कन्वर्ट करने के लिए वहां क्या करते, 2 पाई अपॉन 360 यानी कि पाई अपॉन 180 वहां वैल्यू पुट करते। दैट कुड हैव बीन आवर करिस्पॉन्डिंग कैलकुलेशन इन एसआई सिस्टम। अगर हमें मिनट में वैल्यू मिलती तो जैसे 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। हाँ, एक बात देखना, अगर हम डिग्री लिखेंगे तो पावर 0 नहीं लगाएंगे, अगर हम मिनट लिखेंगे तो डैश नहीं लगाएंगे। चूंकि हम पहली बार इस बात को सीख रहे हैं इस वजह से हम ये बात ब्रैकेट में मेंशन करते चल रहे हैं। बट यू रिमेंबर, ईदर यू राइट डिग्री और यू पुट दिस सिंबल, ईदर यू राइट मिनट और यू पुट दिस डैश। यू डोंट गो फॉर बोथ थिंग। यहाँ 1 डिग्री डिग्री हो गया, दिस इज रॉन्ग। तो अब चलते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट तो 1 मिनट में 1 अपॉन 60 डिग्री, इसको इस तरफ ट्रांसपोज किया। अब आपने ऊपर देखा 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन है, तो 1 डिग्री की जगह पाई अपॉन 180 यहां पुट किया तो 1 मिनट इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 60 रेडियन। अब देखते हैं दूसरी बात, हर मिनट में 60 सेकेंड है, तो हर मिनट में 60 सेकेंड है तो 1 सेकेंड में कितना हुआ, 1 अपॉन 60 मिनट। आपने ऊपर 1 मिनट इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 60 रेडियन कैलकुलेट किया है, 1 मिनट की वैल्यू यहां सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 180 इंटू 60 इंटू 1/60। तो ये हो गया 1 सेकेंड इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 60 इंटू 60। नाउ अब आप देखें ये जितने ये वाला पोर्शन हाईलाइट है, ये पोर्शन हाईलाइट है और ये पोर्शन हाईलाइट है। अगर आपने प्लेन एंगल के वैल्यू को डिग्री में कैलकुलेट किया होता, सपोज 5 डिग्री, तो हम जो ऊपर का फॉर्मूला था यहां पर, इसमें हम क्या करते, 5 डिग्री के लिए 5 डिग्री इज इक्वल टू 5 पाई अपॉन 180 रेडियन। अगर हमने 5 मिनट कैलकुलेट किया होता तो 5 पाई अपॉन 180 इंटू 60 रेडियन। अगर हमने सपोज 500 सेकेंड कैलकुलेट किया होता तो 500 पाई अपॉन 180 इंटू 60 रेडियन करके रेडियन इक्विवेलेंट को ऊपर सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलिए छोटा सा एक न्यूमेरिकल करते हैं। ये न्यूमेरिकल आपके एनसीईआरटी बुक में है, उसी एलोब्रेशन का एक और एनहांसमेंट। कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री 1 मिनट एंड 1 सेकेंड आर्क सेकेंड इन रेडियन। यानी 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, 1 मिनट में कितने रेडियन होते हैं, 1 सेकेंड में कितने रेडियन होते हैं, उनको कैलकुलेट करना है। और आपको वही पुरानी चीजें दी हुई हैं, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, हर डिग्री में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकेंड। ओके, आंसर। अब 1 डिग्री में पहले रेडियन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 360 डिग्री में 2 पाई रेडियन, तो 1 डिग्री में 2 पाई अपॉन 360 रेडियन। सो हमने क्या किया, यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 पुट करिए, न्यूमेरिकली सॉल्व कर लीजिए, दिस इज व्हाट योर आंसर इज। दूसरा, 1 मिनट में कितने रेडियन होते हैं उसको कैलकुलेट करना है। तो आप जानते हैं 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री।
अब आपने 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं यहाँ कैलकुलेट किया, तो आपने 1 डिग्री में इतने रेडियन, तो 1/60 डिग्री में 1/60 इंटू 1.745 इंटू 10⁻⁻2 इतने रेडियन आ गया। इसी तरीके से 1 सेकेंड में कितने रेडियन होते हैं इसको कैलकुलेट करना है। तो आपने देखा 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में 1/60 मिनट। अब 1 मिनट में कितने रेडियन, इतने। इसको हमने लिखा 1 मिनट को 1/60 इंटू 1/60 डिग्री, दैट इज 1/3600 डिग्री। 1/3600 डिग्री में हमने 1 डिग्री में इतने रेडियन, तो ये रेडियन की वैल्यू रखी। सो वी गॉट 1 सेकेंड इज इक्वल टू 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। इन सारी चीजों को आप बिल्कुल बाय हार्ट कर लीजिए, आगे के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में ये डायरेक्टली इस्तेमाल होंगे। अब चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। Sun's angular diameter is measured to be 1920 second. The distance capital D यानी angular diameter is measured to be, यहाँ हमने देखा ये एंगल कितना बनाता है, plane angle is given as what? Plane angle is given as 1920 second. पीछे भी हमने देखा था कि या तो हम प्लेन एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं, या मिनट में मेजर करते हैं, या सेकेंड में मेजर करते हैं। सो दिस टाइम वी हैव मेजर्ड इन सेकेंड, सो फाइन। अब 1 सेकेंड में 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन, तो 1920 सेकेंड में हो गए इतने रेडियन। 1920 इंटू 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन, इसको मल्टीप्लाई किया तो थीटा की वैल्यू ये पता चल गई। नाउ यू नो दैट प्लेन एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, दिस टाइम आर्क लेंथ इज इक्वल टू डी विच इज डायमीटर ऑफ द मून। सो कंप्लीट सेम कंसेप्ट इज अगेन देयर। यहाँ से आप सर्कल कंप्लीट करिए एंड देन यू गेट द प्रॉपर थिंग। डी की वैल्यू में आपने क्या किया, थीटा की वैल्यू मालूम है, और डिस्टेंस इज ऑल्सो गिवन। लुक, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कुछ टर्म्स को डिफाइन करना है, अगले लेसन्स में वो भी डिफाइन होंगे। नाउ यू मल्टीप्लाई दिस एंड देन यू फाइंड व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सन।